And what is the role of The this? present applicant is the manager of the State Bank, my lord. Huh. And it has been alleged, my lord, that the co-accused and the applicant receive money, my lord, for closure of KCC account, Kisan Credit Card. But that was not Issue- deposited in the account. Yes, my no, NOC has been issued, my lord, Mhm. and that has not been deposited. How, what is the amount of money? My lord, that is comes, my lord, 84 lakh something, 79 lakhs, 79 lakhs 9,000. बहुत बहुत ही मतलब है आपके पक्षकार साथ वाले व्यक्ति हैं. मतलब Being nothing. a responsible officer of State Bank of India, Yes, my lord. he State has Bank. committed such offense. Well, there is no evidence against me, my lord. Kindly consider the annexes, my lord. That much amount which was deposited by the By the client or co-accused. The co-accused, my lord, is the Delhi Weather employee who has been engaged by, my lord, another company. He received the entire amount. He issued the four NOCs, my lord, and the Bandhak. Was he entitled for issuing NOC? No, he is not authorized, my lord. Without your connivance, is it possible to issue such It was not well within the knowledge of the present applicant. Rather, my lord, the present applicant has issued notices to the, my lord, the farmers to deposit the money. कितने दिन से जेल में हैं? Sir, 4 महीने हो गए इनको. There is absolutely no evidence against the present applicant. Except 24 Is it so? 24 से 25 नहीं नहीं, वो तो मैनेजर हैं, जेल में बंद हैं और एलिगेशन भी है. इज देयर एनी एविडेंस दैट ही हैज मैं ये घर घर जा के लेते मैं जसमत करके एक स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ. खेती has he given any receipt under his signatures? Even there is a handwriting expert. I am sorry. I am sorry. जो सारी बोलेंगे ना आपको कुछ अगर होगा तो पूछेंगे आपसे. I am sorry. बैंक 2024 में बैंक मैनेजर आशीष प्रेजेंट एप्लीकेंट व कर्मचारी राहुल बैरागी मेरे गांव घर पर आकर मेरे पिताजी को बताया कि आप किसान समाधान योजना के तहत रुपए जमा करवा दो जिससे आपका केसीसी लोन पूरा हो जाएगा, आपकी जमीन बंधन मुक्त हो जाएगी. इसी बात को लेकर Whose statement you are referring? एक जसमत का है और एक कंप्लेनेंट का भी. जसमत and who is complainant? कंप्लेनेंट इज अजब सिंह. अजब सिंह. मतलब only one complainant? हाँ, फिर बाद में जब आए तो ऐसे 10-15 लोग आए. मतलब from whose that amount was collected and not deposited in the bank? एनओसी भी The total amount is 84 lakhs. नहीं 79 लाख 9,000. 9 lakh and 9,000. हाँ. ये क्या करते थे, रुपए जमा करके केसीसी का कर देते थे कि आपका खाता बंद हो गया, जब कहीं और वो दूसरी जगह लोन लेने था. Issued that NOC. एनओसी का तो इसी का कहा सबने कि इन्हीं ने एनओसी दी है. बाद में जब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई तो साइन इसके नहीं आए हैं, लेकिन इनको सब नॉलेज में था क्योंकि इनकी आईडी पासवर्ड यूज करके एनओसी निकाली गई है. तो आईडी पासवर्ड तो इन्हीं के थे, तो इनको सब मालूम था कौन कैसे क्या कर रहा है. अब वो एनओसी में इनने जानबूझ के गलत Your ID and password has been used for issuing NOC? Yes, it has been issued. Not for issuing NOC. It has been issued, my lord, for removing the lien on the side. The lien means you are acting hand in glove with the person unless and until that amount has been deposited. How it can be removed a lien unless and until that amount has been paid? It is alleged, my lord. No. My lord, what happened in the banks, my lord? There is a queue of 20 or 30 transactions and one OTP has been received in the mobile of the manager. It is general practice of the each and every bank कि एक क्यू जनरेट होती है, एक ओटीपी आता है, उससे सारी क्यू क्लियर हो जाती है. उसमें डिपॉजिट भी होता है, विड्रॉल भी होता है, एनओसीज भी होती है. Do you want to say that manager without verifying the factum of genuinity of that particular? सर मैं और निवेदन करूंगा कि जिस ड्यूरेशन का ये पूरा एक्ट हुआ उस ड्यूरेशन में मैं पोस्टेड ही नहीं था. And for given the bigger picture of this case, my lord, the applicant have been implicated. The entire transaction has been done before the present applicant, my lord. Kindly consider, my lord. How your ID password has been used? Subsequently, ये पहले से कर रहा था और मेरे आईडी पासवर्ड इसलिए यूज हुए क्योंकि जो क्यू जनरेट होती है वो पूरे बैंक में सर एक एक ट्रांजेक्शन पे बैंक मैनेजर से ओटीपी नहीं मांगा जाता है. एक पूरी क्यू जनरेट होती है और उस पर ओटीपी आता है. और कई बार सर बैंक में भी हम देखते हैं वहां से जो कैशियर होता है वो पूछता है कि सर क्यों क्लियर कर. इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया सर. ईच एंड एवरीथिंग इज कंप्लीटेड एंड द एंटायर अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड सीज्ड फ्रॉम द को-एक्यूज्ड पर्संस, my lord. और nothing has been received. जी
what has been recovered from the accusation? इससे कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो कोई कि उसका मेमो लिया, उसने बोला मैंने ये राशि से गाड़ी खरीद ली, शादी कर ली, ये सब उसके मेमो में है। अच्छे अच्छे काम कर लिया उसने और क्या। And my lord, the initial complaint against the co-accused and subsequently when this has been turned into FIR, my name have been implicated to give in the bigger picture. आप एक- But without your assistance, was it possible for a daily wager to hatch a conspiracy to execute such a larger scam? Because my lord, nothing has been received in the bank. If it has been done within the bank, therefore the police investigation team is required to collect the CCTV footage. हर बैंक में 1 साल का CCTV होता है। अगर बैंक के इनसाइड कुछ होता है तो आप CCTV कलेक्ट कर सकते थे कि ये लोग उस दिन आए भी हैं कि नहीं। जिस दिन मैंने सर ज्वाइन किया बैंक में एज ए मैनेजर, उसके पहले के इंसिडेंसेस हैं और मेरा नाम लिया जा रहा है। मैं सर एक दो अगर आप बता स्टेटमेंट से मैं बता सकता हूँ कि इनिशियली जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं, कब से किस ड्यूरेशन के बीच में आपके इंसिडेंट है? डेट ऑफ इंसिडेंट, पीरियड ऑफ इंसिडेंट क्या है? सर FIR से बता रहे हैं कि 4/5/24 से 7/1/25 का इंसिडेंट। 4/5/24 से 7/1/25 का इंसिडेंट। 7/1/25। और आपकी पोस्टिंग कब हुई? और सर ये जो कुछ NOCs है 2000 डोंट ट्राई टू अवॉइड माय क्वेरी। मेरे सर जुलाई 23। 22/7/2023। 22/7/2023। तो इट मींस यू आर पोस्टेड देयर प्रायर टू द कमीशन ऑफ दिस ऑफेंस। सर ये जो FIR रजिस्टर्ड हुई है एट द इंस्टेंस ऑफ 1 पर्सन, और जो बाकी बाद में लोग इम्प्लीड हुए हैं इसमें एज ए कंप्लेनेंट, उनकी डेट्स हैं 2023 की। मतलब काइंडली हैव अ लुक दिस डॉक्यूमेंट, आई विल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज पार्ट ऑफ द चालान, दिस इज पार्ट दिखाओ ऑफ दिखा दे। डर रहा है कि कहीं ये घपले में नहीं फंस जाए। कागज लेने से डर रहा है कि कहीं ये छूने से उलझ नहीं जाए। मतलब काइंडली कंसीडर माय annexures madam, which will make entire picture clear. The annexure A2 my lord. सर Annexure A2 पेज नंबर 15। इसमें क्या बताना चाहते हैं कागज में? सर ये आप रेफर करूंगा मैं फॉर असर्टेनिंग द डेट माय लॉर्ड। पेज नंबर 15 है सर। एक ये मुकेश कुमार है, ये कंप्लेंट करते हैं मुझे कि श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, शाखा उज्जैन मोहनपुरा सुजालपुर, केसीसी खाता बंद ना होना। विनम्र निवेदन है कि केसीसी खाता नंबर सो एंड सो में मेरा खाता मेरे पिताजी के नाम पर था, उनका नाम सो एंड सो है, उनकी अब मृत्यु हो चुकी है। मैंने इन खातों को नवंबर 23 में बंद करवाने हेतु राहुल बैरागी को, राहुल बैरागी इज द सेकंड पर्सन, इज द को-एक्यूज्ड, 2 लाख रुपए राहुल बैरागी के अप्रैल 21 को मेरे घर आकर फर्जी NOC लाकर दी। इसने इनके घर जाके राहुल ने को-एक्यूज ने NOC दी। मेरा निवेदन है कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बैंक की तरफ से मुझे ऋण समाधान योजना का नोटिस आने पर मुझे पता चला, ये नोटिस सर मैंने इशू किया था कि मेरा खाता बंद नहीं हुआ है। बंधक मुक्ति के लिए राहुल बैरागी द्वारा जो फर्जी NOC दी थी उसकी फोटो कॉपी एवं रजिस्ट्रार ऑफिस के बंधक मुक्ति हेतु में दस्तावेज मैंने उसे दिए थे, जिस पर फर्जी सील कर मुझे दिए थे, जिसकी प्रति मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में दी थी और दूसरी प्रति वहां से प्राप्त की थी, वह मूलतः संलग्न है। ये कंप्लेंट सर मुझे दी मुकेश ने, और आई हैव फॉरवर्डेड टू दी। ये सर मैंने पेज नंबर 14 देखेंगे, मैंने इसको सीनियर ऑफिसर को फॉरवर्ड किया। ये एक कंप्लेनेंट है सर। अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे सर, पेज नंबर 16 पे 19 पे एक रजनीश है। रजनीश ने भी मुझे कंप्लेंट दी कि को-एक्यूज ने मुझसे पैसे लिए। 16 में क्या था? 16 में भी सर यही था, सबने उसका नाम लिया आशीष। मेरे पर्सन्स हैव लॉन्च्ड कंप्लेंट अगेंस्ट दिस फेलो। और यही तीनों लोग जब 161 कितने लोगों ने शिकायत करी है? सर ये इनिशियल 3 लोगों ने शिकायत की थी और मैंने तीनों फॉरवर्ड कर दी थी सीनियर ऑफिसर्स को। और यही लोग जब 161 के बयान देते हैं तो मेरा नाम लेते हैं कि ये तो डेली बेजर एम्प्लॉय है, अगर हम बैंक मैनेजर को फंसाएंगे तो बिगर पिक्चर, और हो सकता है कि हमारा ये माफ भी हो जाए। देयर मे बी ऑफेंस, को-एक्यूज ने किया होगा, लेकिन सो फॉर एज माय पार्ट इज माय लॉर्ड द कंसर्न, आई हैव नथिंग टू डू। ये 3 लोगों का But how will you convince that when your ID and password have been used, you have not verified that amount has been deposited or not, and you are issuing NOC? मैंने NOC इश्यू नहीं की, इसने NOC इश्यू की को-एक्यूज ने, और उसके सिग्नेचर वेरीफाई हुए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। Was he authorized to issue? He has not been authorized. Even he is not be assigned for this work also. उसने बाहर सब कुछ किया, जब यहाँ डिपॉजिट नहीं आया और ये लोग डिफॉल्टर हुए, तो बीइंग ए बैंक मैनेजर आई हैव इशूड दी नोटिसेस टू देम।
जब नोटिस इशू हुए किसको किसको ये सारे डिफॉल्ट persons from whom the amount was collected and not deposited in the bank. ऑल दी कंप्लेनेंट जिनका डिफॉल्ट होता है उनको बैंक हाँ, ठीक है ना, वो तो तो सर ये तीनों लोगों ने शिकायत की और बाद में 161 में ये सर चेंज कर देते हैं वर्जन। अब सर काइंडली हैव अ लुक द डॉक्यूमेंट व्हिच आई हैव सप्लाई माय लॉर्ड। इन लोगों ने कब पैसा जमा करना बताया? सर ये लोग All the बता three रहे हैं- persons who have allegedly paid to the daily wager and that has not been deposited in the bank. एक ने नवंबर 2023 में बताया। किस पेज पे कहाँ पर देखिएगा तुरंत? ये जो ये इन्होंने तीन लोगों ने जो शिकायतें की हैं 14, 16 और 19 पेज पे, क्या कहना उन्होंने कब पेमेंट किया हो? 14, 16 और 19 पेज पे, एक मिनट, 14 पे उन्होंने क्या कहा है? अप्रैल 24 को लाकर दिए तो बंद करने के लिए, ये नवंबर 23 में दिया था इन्होंने। 23 में दिया, और ये कब से पोस्टेड है? जुलाई 23 से। जुलाई 23 से, तो वो भी पीरियड इन्हीं के उसमें है। और इसके बाद में दूसरे वाले ने 16 नंबर 20 अगस्त 24 का है 20 अगस्त 24 का, तब भी ये पोस्टेड थे। जी। और तीसरा है 19 नंबर पेज। 11/12/23 का। हम्म। और कुछ कहना? Yes. अब सर कुछ लोगों के और 161 के स्टेटमेंट्स हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने 3 जुलाई को पैसा बैंक मैनेजर साहब को दिया। नाउ माय लॉर्ड काइंडली कंसीडर दिस डॉक्यूमेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ चालान। 23 जुलाई को एज ए मैनेजर मैंने वहां ज्वाइन किया है। 3 जुलाई को मेरा ट्रांसफर होता है मेघनगर ब्रांच से और मैं 23 जुलाई को सर ज्वाइन करता हूँ। क्या नाम क्या है मैनेजर साहब का इनका? सर आशीष आर्य। अब ये सर स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। एक करण सिंह है ने बताया कि पते पर रहता हूं, खेती किसानी का काम करता हूं। सन 2014 में एसबीआई बैंक शाखा उचोद मोहम्मद खेड़ा में केसीसी खाता खुलवाया था। ये इन्वेस्टिगेशन कब कंप्लीट हो गया? सर ये कंप्लीट हो गया सर 6/3 को। 6/3/2025 को। यस मतलब हैज एनी चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड? नहीं अभी चार्ज। और ये बोलते हैं कि सर खाता खुलवाया था दिनांक 3/7/2023 को किसान समाधान योजना के तहत मुझे एसबीआई बैंक मैनेजर साहब द्वारा सूचना कर बुलाया गया था, जिस पर मैं बैंक गया। तो मैं तो 3 तारीख को ज्वाइन ही नहीं किया सर, मैं 23 को जुलाई को वहां पे ज्वाइन किया। फिर सर एक और देखेंगे, दूसरा है चंदन। किसका बयान वो कर रहा है? सर ये करण सिंह पिता मोतीलाल। करण सिंह पिता मोतीलाल क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि केसीसी खाता खुलवाया था दिनांक 3/7/2023 को किसान समाधान योजना के तहत मुझे एसबीआई बैंक के मैनेजर साहब द्वारा सूचना करके बुलाया, जिस पर मैं बैंक शाखा गया था। वहां पर मैनेजर साहब ने मुझे बताया कि किसान समाधान योजना के तहत आपको 2.5 लाख रुपए जमा करना है। तो मैंने 2.5 लाख रुपए बैंक में जमा कर रसीद प्राप्त की एवं बैंक के अधिकारियों द्वारा मेरा जमीन को बंधक मुक्त कर दिया गया, मुझे एनओसी दे दी गई। उसके बाद मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई लेन देन केसीसी ने नहीं कराया गया। जब मेरे द्वारा जमीन का ये इसकी पोस्टिंग भी अच्छा 22/7 की है। 22/7 की है पोस्टिंग। 22/7 को सर मैं कुछ है तो ये तो करण सिंह का हो गया 2.5 लाख रुपए का। अब ये एक और है सर नंदलाल पिता वदरीलाल ने बताया कि उक्त पते पर रहता हूं, किसानी का काम करता हूं। मेरे पिताजी ने 2014 में एसबीआई शाखा में खाता खुलवाया था। मेरे पिताजी ने इनका कब का ट्रांजेक्शन है? सर इसका जो करण सिंह का था, इनका था 2.5 लाख का। और ये दूसरा नंदलाल है, ये भी 2.5 लाख का है। कब का है? ये बोल रहे हैं 15/7/23 को मैनेजर साहब आशीष आर्य, ये नाम ले रहे हैं सर। और मैं तो ज्वाइन ही 23 को किया है। हाँ ठीक है। तो ये सर फॉल्सिफाई इससे होती पूरी कंप्लेंट। बाकी ये 2 के अलावा और बाकी की बताओ। एक और है सर धन सिंह है, ने बताया कि उस पते पर रहता हूँ। धन सिंह का कब का ट्रांजेक्शन और कितना है? ये धन सिंह का है सर, ये 20/11 बता रहे हैं। ये 15/7 का, एक 3/7 का हो गया, एक 15/7 का हो गया, और ये 15/7, ये धन सिंह भी 15/7 बता रहे हैं। ये भी 15/7। और ये क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि योजना के तहत पिताजी द्वारा 100 रुपए बैंक मैनेजर साहब आशीष आर्य को देकर जमा कराया था। मेरी प्रेजेंस ही नहीं है बैंक पे। और बाकी टोटल कितने लोग हैं? सर 18 के आसपास लोग हैं। तो 3 में 15 लोगों ने क्या कहा? सर वो बात की डेट बता रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं, आप ही थे? नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता एक एक्ट मैं करूं सीरीज में, बाकी एक्ट और नहीं, बाकी और व्हाट इज योर एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल द अदर 15 transactions which were committed and transacted in your presence when you were the manager? मतलब एक्सेप्ट स्टेटमेंट माय लॉर्ड, देयर इज नथिंग, इट्स ए केस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस।
And allegation against the applicant should have been, my lord, proved by the document. Now, my lord, kindly consider annexure A3. Will be proved. This is not a stage when unless until charges are framed and evidence is laid. If it is presumed, the entire charge sheet, then also I have not been convicted, my lord. Kindly consider, my lord, annexure A3. That is the handwriting expert report. Not a single signature has been verified. Even issuance of NOC, even issuance of Bandhak Mukti Pramar Patra. You cannot get rid of only on the basis that NOC or जो है, receipts have not been issued in your handwriting. Yes, my lord. Once it is proved that the NOC has been issued via your ID and password, then you will be. नहीं सर, well within NOC the उससे process. इशू नहीं हुई है. NOC तो सेपरेट बनाई है और उसको फोर्थ सिग्नेचर करके किसानों को दी कि है. NOC जो जारी हुई है उस पर सिग्नेचर आप देख. अजब सिंह की स्टेटमेंट है, उसने बोला कि इसने एनओसी दी मेरे को. फिर दिनांक 4/5/24 के एनओसी ब्रांच मैनेजर आशीष यार ने मुझे दी. कब का है ये? 4/5/24 को, इसके बाद पोस्टिंग के बाद का. मैनेजर द्वारा बताया गया कि आपके खाते में 1,27,000 जुमा करके खाता बंद कर दिया गया है. मेरे द्वारा पिताजी के B1 खसरा निकलवाया तो बंधन मुक्त लिखा था. फिर मेरे द्वारा मेरे पिताजी का खाता सेंट्रल बैंक इंडिया सो में KCC लिया. पिताजी की प्रधानमंत्री सम्मान निधि की किस्त नहीं आई तो मैंने SBI बैंक के मैनेजर आशीष सर से पूछा कि मेरे पिताजी की सम्मान निधि नहीं आई तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा खाता बंद हो चुका है. मुझे शंका हुई तो ब्रांच मैनेजर से मेरे पिताजी के खाते का स्टेटमेंट मांगा तो ब्रांच मैनेजर आनाकानी करने लगा. तो मैंने मेरे पिताजी के KCC बैंक खाते का स्टेटमेंट दूसरी SBI शाखा से निकलवाया तो मेरे पिताजी के खाते में SBI शाखा चौध मोहम्मद खेड़ा KCC का चार्ज बताया. At present, at least I am not inclined to grant your client bail. My lord, kindly consider 2-3 more things. If and then, my lord, Then I will pass order on merit. But otherwise, I will not allow you to withdraw that. kindly consider 2-3 things. Whatsoever you may argue, but My lord, there is absolutely no evidence against the present applicant. Kindly consider, my lord, the disclosure memo of the present applicant as the co-accused, my lord. The co-accused, my lord, the Rahul says, my lord, मैं दिसंबर 2016 से SBI बैंक सो एंड सो पर. tell me one thing. Is disclosure statement of any co-accused. Yes, my lord. If he said that I have committed all the things and our co-accused is innocent, can it be of any use to for you? Because as per the disclosure memo, my lord, the corroborative evidence has been seized by the police. उसने कहा कि मैंने सील फर्जी लगाई, ये सील मैं जब्त करा देता हूँ. सील उससे मिली है. उसने जितना पैसा कलेक्ट किया उससे गाड़ी खरीदी, शादी की, घर बनाया, सारी चीजें सीज हुई हैं. कितना ज्वेलरी दिलाई अपनी वाइफ को, जो भी जितने पैसे कैश हुए सर, 1-1 रुपए का हिसाब डिस्क्लोजर मेमो में और वो सब सीज हुआ है. इसलिए सर, और मेरे से जो डिस्क्लोजर मेमो लिया है कुछ भी सीज नहीं है. तो इसलिए कोरोबोरेट करेगा एविडेंस 27 का मेमो, सारी चीजें. कि कितना अमाउंट उसे जब हुआ, कितना ज्वेलरी जब हुई उसे. सर 2 मिनट में सर इससे बताओ जब तक वो चेक करेंगे क्लियर हो जाएगा. मैं कंप्यूटर का ज्ञान भी रखता हूं. बैंक में काम करते समय बैंक के सभी काम में सीख गया था. मैं मैनेजर एवं स्टाफ द्वारा बताए गए कार्यों को करता था जिससे बैंक के मैनेजर और सभी स्टाफ मुझ पर भरोसा करते थे. बैंक में किसानों के KCC लोन मंजूर करवाना, लोन का पैसा वापस लाना, जमा करवाना व मैनेजर के साथ फील्ड विजिट करना कार्य करता था. किसान ऋण समाधान योजना के दौरान मैनेजर के साथ गांव जाता था जिससे किसानों को लोन जमा करने के लिए मिलने वाली सब्सिडी के बारे में बताते थे, जिससे सभी किसान मुझे जानते थे. मैनेजर साहब के कंप्यूटर एवं ID से भी मैं काम करता था. वर्ष 2023 से अभी तक मैंने करीब 25-30 किसानों के KCC लोन करीबन 50 से 60 लाख रुपए लोन अकाउंट में जमा करने हेतु कुछ लोगों से बैंक में एवं कुछ लोगों से बैंक के बाहर लिए, जिस पैसे की धोखाधड़ी से अपने पास रख लेता था और किसानों को बैंक जमा पर्ची भी नहीं देता था. उसके बाद मैंने फर्जी NOC एवं बंधक मुक्त विलेख तैयार कर उन पर बैंक की सील व मेरे फर्जी हस्ताक्षर करता था. कुछ किसानों को मैंने NOC की छाया प्रति व कुछ किसानों को असल NOC दी थी, कुछ को बंधक मुक्त विलेख की प्रतियां दी थी. मैनेजर आशीष आर्य साहब की भू अभिलेख की वेबसाइट की ID एवं पासवर्ड मुझे पता था, जिससे मैं ID लॉगिन कर उस पर किसानों के बंधक मुक्ति के बनाए गए नकली दस्तावेज अपलोड कर देता था. और जब मैनेजर साहब ID से मुझे किसी काम को करने का बोलते थे, उसी समय धोखे से उनसे OTP लेकर अपलोड किए दस्तावेजों के तहसील की ID पर भेज देता था और इसी आधार पर तहसीलदार साहब द्वारा किसान की भूमि को बंधक मुक्त कर दिया जाता था एवं खसरे की एंट्री हो जाती थी. किसानों को लगता था कि उनका KCC खाता बंद हो गया. मैंने खाता धारक किसानों की धोखाधड़ी रुपए कमाए थे, उससे मैंने राठी कॉलोनी वाले घर का निर्माण कराया.
मेरी माँ संतोष के नाम पर है, जिसमें करीब 7 से 8 लाख रुपए खर्च हुए। मैंने स्वयं की शादी फरवरी 24 में की, जिसमें 10 से 12 लाख रुपए खर्च किए। मैंने उन्हीं पैसों से 2024 में पत्नी के नाम से टाटा नेक्सॉन कार खरीदी एवं एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल खरीदी एवं एक होंडा सिटी कार भी मेरे नाम से खरीदी। धोखाधड़ी के रुपए में से मैंने 7 तोला करीब सोना खरीदा एवं बैंक मोहम्मद खेड़ा में 4 तोला सोना मेरे नाम से, आईडीएफसी बैंक ककोतिया में 7 तोला सोना गोल्ड रखा है। मैं उसी रुपए से अंकित मेवाड़ा निवासी मोहम्मद खेड़ा को 2,50,000 रुपए, नितेश पिता रमेश मेवाड़ा को 3,84,000 रुपए, इरफान अकोदिया को 3,60,000 रुपए, राजकुमार को 44,000 रुपए, रफीक को 48,000 रुपए, रूप सिंह को 80,000 रुपए, अंबाराम को 80,000 रुपए उधार दिए हैं, जो फोन पे के माध्यम से ट्रांसफर की है। टाटा नेक्सॉन गाड़ी मैंने सीहोर में रखी है, मोटरसाइकिल ससुराल में रखी है। बैंक की सील जिसका उपयोग मैं करता था एसबीआई मोहम्मद खेड़ा में, चलो चलकर बता देता हूँ। मतलब एवरीथिंग हैज बीन सीज्ड फ्रॉम द माइलॉर्ड द को-एक्यूज्ड पर्सन माइलॉर्ड, and my lord, so far as the the statement part is concerned, what amount of the case has been recorded from that fellow? केस तो कुछ भी नहीं सर जो उसने एक्सपेंड किए हैं पैसे उसने वो सारे बताए। अब नाउ माय लॉर्ड काइंडली सी द सीजर मेमो। सीजर मेमो में सर सारी चीजें इससे मिली है। कार जब्त हो गई इससे, आरोपी के द्वारा बताया कि कार को मैंने धोखाधड़ी के पैसे से खरीदा है। तो सर नेक्स्ट सीजर मेमो है इसका मोटरसाइकिल का है। फिर नेक्स्ट सीजर मेमो है सर इसका मोबाइल के अलावा जो और सारी चीजें इसने खरीदी है। फिर इससे सर सील भी सीज हुई है और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ चुकी है सर। So there is, my lord, absolutely no evidence against the present applicant, my lord. And being a manager, my lord, he cannot be done a silly mistake, my lord. It's apparent, my lord, to be. This is not a silly mistake. This is a very wise offense Yes, which has my been committed by the. Yes, my lord. Being a manager, वो ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकता, इसलिए silly बोल रहा हूँ। It's apparent. ये 1 सेकंड में दिखने वाली चीज है। और nothing has been seen, my lord. He's a person, my lord, he's serving in the department since last 30 years. This is Not a single complaint have been this recorded. is not a case where 1 or 2 instances are there. Several instances of misusing is PW and जो है ID. Once, twice, it may be a mistake, but this series of transactions show that connivance. I have, my lord, even not posted that time. I state. तो उसे ओटीपी भी दिया है, इसलिए इसको सब पता था। और एनओसी भी दी है, स्टेटमेंट है अजब सिंह के किसी ने लाके दी। जब पूछा तो आनाकानी करने लगा, तो प्राइमा फेसाई तो एविडेंस भी सफिशिएंट मटेरियल है इसके अगेंस्ट। ही वाज हैविंग हैंड एंड क्लोज विद द को-एक्यूज्ड पर्सन। इसका आईडी पासवर्ड भी यूज हुआ है। And my lord, 70 witnesses in this, my lord, the case, my lord. And the only applicant is the only male member in the family, my lord. Any instant condition may be imposed, my lord. Nothing is required to be seized, my lord, and no purpose would be served. An innocent person cannot be, my lord, remain in the jail. Except statement, my lord, there is no evidence. And that has been falsified before the showing, my lord, the initial complaints. सारी complaint उसके against में थी. And my entire family, my lord, the bank statement has been seized by the police. Not a single penny was, my lord, the unauthorizedly transferred here to there. My daughters, my lord, my wives, my in-laws, my personal account statement. Not a single penny was transferred here to there. State. I am listing it for tomorrow. You go through the whole case and then address. जी। Otherwise, I think you have gone through the case. Anything remains which is to be addressed? नहीं नहीं है, ठीक। देखिएगा। Next.